to Sunday Health with Policy Bazaar. Now, we all know that childhood is a very influential time in every individual's life. मतलब जो भी बच्चे चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करते हैं अपने बचपन में, जो एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट उस पर डिपेंड करता है कि वो एज एन अडल्ट उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो स्ट्रेस से कैसे डील करेंगे, सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड देयर आर लाइक लिटरली सो मेनी फैक्टर्स दैट डिपेंड ऑन what you went through as a child. So obviously it becomes really, really important. And I'm Chavi Mittal. I'm also a mother of two and really looking forward to today's session with Dr. Mimansa Singh, who is going to help us understand child psychology. She is a clinical psychologist with the Department of Mental Health Behavioral Sciences, Fortis Healthcare. She's a cognitive behavioral therapist working in the clinical space using evidence-based treatments with adolescents, parents, couples, and families. She holds an MPhil in clinical psychology and has been a speaker at various national and international forums on issues related to mental health and is a TEDx speaker. She has co-authored a parenting book with Rupa Publications and has designed and co-authored Talking About Mental Health in the Classroom, a mental health curriculum for teachers, published by Macmillan Publications. She has also co-authored 2 Amazon Kindle edition ebooks and has been actively engaged with schools, leading NGOs and corporates through workshops and trainings to raise mental health awareness across the country. Dr. Mimansa Singh Tanwar, welcome. Thank you. Thank you so much. And be ready to be bombarded with all sorts of questions today. Absolutely. Looking forward. Session to apni jagah hai, but first I'm a mother and I was literally like really looking forward to this session क्योंकि इतना सारे confusion parents के दिमाग में होता है बच्चों के development को लेकर, और ये confusion हर stage पे अलग तरह का confusion होता है. Like I have 2 kids, one is going to be 9 and the other is 2.5. तो 2.5 years वाले के साथ जो confusion होता है वो 9 years के से बहुत different होता है. But I know that I'm also involved of educator. So I know that what happens in the childhood is very important and crucial for a child's growth. And all of us here in the audience also, we're just trying to be the best parents that we can. So I'm just going to shoot right ahead. And to the audience also, if you have any questions, please उनको आप note करके रखिए क्योंकि आपको भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा. So Dr. Mimansa, the first question to you is, what is the most important thing in a child's development? And what role does the social environment play in it? So part of the answer जो आपके question में है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है उनकी लाइफ में, उनकी ग्रोथ में, वो होता है उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट, जिसमें आते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर एक्सटेंडेड फैमिली, एंड अगर जॉइंट फैमिली है तो जो भी फैमिली में रहता है, एंड स्कूल्स, फ्रेंड्स, पियर्स, ये सारा जो है एक इकोसिस्टम जो इमीडिएट बच्चों की लाइफ में होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों की डेवलपमेंट में, क्योंकि बच्चों को कैसे शेप किया जाए, कैसे नर्चर किया जाए, वो हम पेरेंट्स और टीचर्स पे जो है, हमारी कम्युनिकेशन पे, हम क्या उनको चीज़ें बताते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे उनको चीज़ों के अलग अलग स्ट्रेस से डील करने के लिए उनको स्किल्स देते हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो हमारा एनवायरमेंट, बच्चों का एनवायरमेंट, और वो एक ये चीज़ है जो हमने इवन इस दौरान पैंडेमिक में भी देखी. मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक, जहाँ पर हमें इतने डाउट्स और इतनी वरीज और एंजाइटीज थी कि बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर आएगा क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं, हमने ये देखा कि जहाँ पर बच्चों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट घर पे मिला, वहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से डील कर पाए हैं. उनके अंदर रेजिलियंस जो है इस अनसर्टनिटी को डील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. जहाँ आपने देखा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहा है, और हम अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बारे में भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, जहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कम होता है उसका इम्पैक्ट ही अपना अलग होता है, और वो आपका इम्पैक्ट आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों पे जो है असर करता है. Okay, that makes a lot of sense. But doctor, tell me कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपने बच्चों में देखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोना गो फर्स्ट हियर. आई वांट टू सी a definite positive change in my child's behavior at meal times. You know, तो कोई तरीका होता है कि कोई स्टेप्स हम एज पेरेंट्स ले सकते हैं ऐसा करने के लिए इन डिफरेंट सिचुएशंस? सो पहली चीज़ तो ये मुझे लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, तो वहाँ पर मतलब ये है कि बच्चे इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व भी उतना ही करते हैं. तो एज अ पेरेंट एंड एज अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली,
क्या मैं एक ऐसा रोल मॉडल शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ दैट बच्चे पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी लेकर आए, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके उनसे सीखते हैं, हमसे सीखते हैं. सो वी आर एक्चुअली द इमीडिएट रोल मॉडल्स. इनफैक्ट वी डन अ सर्वे years back. Immediate role models for any child is actually their parent and their teachers. So पहली चीज तो ये कि हमें अपने बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेक लाने की जरूरत होती है टू सी कि हाँ बच्चे भी उसी चीज को फॉलो कर सके. दूसरी चीज, कोई भी बिहेवियर होता है जो हम बच्चे में बदलना चाहते हैं, बहुत जरूरी होता है कि हम पहले क्लियर करें कि एक्सपेक्टेशन क्या है और गोल क्या है. हमारी कम्युनिकेशन में वो क्लैरिटी कितनी अच्छी तरीके से आ रही है वो बहुत जरूरी है. आप उसको, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम एज अ पेरेंट बिलीव करते हैं आपके लिए अच्छा है और हमें बोलते हैं नहीं ऐसे आप करें क्योंकि हमने भी ऐसा किया है. जरूरी नहीं है कि बच्चे उस चीज को फॉलो करें. स्पेसिफिकली इन टुडेज टाइम जहां पर अवेयरनेस एंड नॉलेज चीजों को लेके इतनी ज्यादा है, और उसी के साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज भी चीजों की उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि हम चीजों को सिर्फ सामने से तौर पे देख के और उसको जो है मॉडल करना शुरू कर देते हैं. तो एनीथिंग दैट यू वांट योर चाइल्ड टू वर्क ऑन, टू चेंज, आप उसको बैकअप करें किसी ना किसी एक नॉलेज के साथ. एक एजुकेटिव अप्रोच लें, चाहे वो मील्स का हो, चाहे वो टेलीविजन वॉचिंग का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो. यू टॉक अबाउट इट इन अ स्किल बेस्ड फॉर्म. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड देन यू गिव इट अ लिटिल स्पेस. थोड़ा सा उसको स्पेस दें. हमारा क्या होता है कि एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि वो चेंज भी थोड़ा जल्दी आ जाए. तो 2 दिन वो चेंज नहीं आया, क्या हम पेशेंस लूज कर रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशन. वी हैव द बेस्ट ऑफ इंटेंशन फॉर आवर चाइल्ड. तो हम ये कहते हैं कि हम आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, पर क्या हम उनको वो समय दे रहे हैं उस चीज को एब्जॉर्ब करके, सोच कर, इवन गलतियां कर कर दोबारा उसको सीखने का. वो बहुत जरूरी है. तो जहां आपने एक चीज समझाई अच्छे तरीके से, स्किल बेस्ड तरीके से समझाई, पर आपने साथ साथ अगले दिन ही नैगिंग शुरू कर दी उसके बारे में, आपने टोकना शुरू कर दिया उसके बारे में, वहीं आपका डिस्कनेक्ट आ जाएगा विद द सेम थिंग. क्योंकि ये रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं फॉर अ चाइल्ड टू फॉलो थ्रू एनीथिंग. आई मीन हम अपने रिलेशनशिप्स को भी देखें ना, हमारे पार्टनर्स, हमारे हस्बैंड्स वाइफ्स के साथ हमारे को एक चीज समझा दी जाती है, हम बोलते हैं कि अच्छा अब हमें थोड़ा टाइम देना, हम कर देंगे. जहां किसी ने बोला नहीं करो, अभी करो, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इट जस्ट गोज out of the window. You don't want to do it because emotions take over you. So if you are nagging, the child's irritability वो टेक ओवर करेगी टू द लॉजिक माइंड कि हाँ मम्मी पापा ने कुछ समझाया था और लॉजिक फिट होता है, वो नहीं, वो हट जाएगा और इमोशंस टेक ओवर कर जाएंगे. आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटेड, माई पेरेंट इज नैगिंग मी ऑल द टाइम, दे आर टॉकिंग टू मी एंड दे आर पोकिंग मी ऑल द टाइम, सो मेरे को ये सुनना ही नहीं है. सो बी अवेयर ऑफ दैट. So, matlab, my very logical question to you is, does this ever end? Like, at what point can parents just be themselves? So as a parent, and that's a very important question to ask yourself. Are you a parent who's a nagging parent? Are you a parent who's a authoritarian parent? Are you a parent who's an authoritative parent, or are you a parent who's a reciprocal parent, a smart reciprocal parent? एक नया कॉन्सेप्ट आया है आज रिसेंटली में, जैसे कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है कि आप हर चीज जो है बहुत ही इंट्रूसिव तरीके से कर रहे हो, और दूसरा आप इमोशन बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे हो कि गिल्ट आपको ओवरड्राइव करता है. मैंने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया तो मुझे उसको कहीं ना कहीं आई नीड टू ओवर डू इट, ओवर कॉम्पनसेट. सो वो ओवर कॉम्पनसेशन कैसा आता है आपके कम्युनिकेशन में, कि आपके बिहेवियर में, नहीं अभी मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आप अभी इस चीज को करोगे, आप ऐसे ऐसे ही खाओगे, आपको ऐसे ही करना है, ये आपके लिए अच्छा है. सो वो ओवर कॉम्पनसेशन में आपके बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है और हमें एज ए पेरेंट नहीं पता चलता उस चीज के बारे में. सो वो हेलीकॉप्टरिंग को हमने हटाना है और हमने रेसिप्रोसिटी को लेकर आना है. रेसिप्रोकल मीन्स दोनों तरफ से हम चीजों को समझ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एक एडिक्वेट स्पेस लेकर आ रहे हैं जहां पर वो भी सोच पा रहे हैं, हम भी सोच पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को और फिर उन चीजों को लागू कर रहे हैं. ऐसे तो आएगा डिजायर्ड बिहेवियर में चेंज, बोथ हमारे भी और उनके भी. Absolutely. So now I want to ask you that as parents, sometimes it gets really, really stressful. And I know कि जब आप as a parent चाह रहे हो कि आपका बच्चा किसी particular, like you said, कि आप ऐसे करो तो आपके लिए better है, और वो नहीं हो रहा है, and you're really trying your best to deal with it. There's a lot of stress that happens around it. So I am thinking that the same kind of stress
द चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग थ्रू। तो यस। जब बच्चा उस स्ट्रेस से गो थ्रू करता है तो हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब नॉट नॉट थिंकिंग अबाउट आवर ओन स्ट्रेस बट थिंकिंग कम्प्लीटली अबाउट द चाइल्ड, कि उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से हम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज, लिसनिंग। बच्चे को सुनना, बिना टोके हुए, बिना एकदम से जंप करते हुए। आप एडवाइस कर रहे हैं, आप बच्चे को उस इमोशन से रेस्क्यू कर रहे हैं, वो चीज नहीं करनी। आराम से, ध्यान से, पेशेंटली बैठ के पहले बच्चे की स्ट्रेस को सुने। जब बच्चा बोलता है, इवन इन दैट प्रोसेस एंड ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग इज नॉट जस्ट विद द ईयर्स, इवन योर आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस में काम एंड कंपोजर, ये दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी है। सो बैठ के बच्चे को आराम से सुने। इनफैक्ट थ्रू द लिसनिंग यू कैन ऑल्सो एम्पथाइज विद द चाइल्ड। सो सिर्फ वर्ड्स में ही एम्पथी नहीं होती है कि हाँ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट जैसे ही आपने बोला बट यू नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द एम्पथी गोज आउट ऑफ द विंडो। So empathy means you hear patiently, you also use the right words, पर आप आराम से पहले बच्चे को सुने। दूसरी चीज, एज अ पेरेंट आपका इनिशियल रिएक्शन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक महसूस करे, अच्छा महसूस करे, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है उससे बहुत ज्यादा तकलीफ ना पाए। ये हमारा एज अ पेरेंट कंसर्न रहेगा, मतलब ये तो एक रिलेशनशिप का के साथ गिवन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि जैसे ही हम अपने रिएक्शंस, इनिशियल रिएक्शंस दिखाएंगे बच्चे को उस टाइम पे, एंजाइटी के या घबराहट के या गुस्से के, ये कोई भी इनिशियल रिएक्शन कहीं ना कहीं बच्चे को डिस्कनेक्ट कर देगा उस टाइम पे बात करने से, क्योंकि उनको ये लगेगा कि माय पेशेंट इज ऑल्सो इमोशनली ओवरबेयरिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो ये दो चीजें बहुत जरूरी है आपके कम्युनिकेशन में जब आप बच्चे से किसी भी स्ट्रेस को डील करने के लिए बात कर रहे हैं। एक बार ये दो चीजों को आपने हैंडल कर लिया, फिर उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आपने वो कोलैबोरेशन कर ली बच्चे के साथ, एम्पैथी बिल्ड हो गई, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ट्रस्ट तो ऑलरेडी है, ट्रस्ट तो बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, बट वो एम्पैथी बिल्ड हो गई। और उस अंडरस्टैंडिंग से जो है बच्चा इज ऑल्सो फेल्ट रिलीव्ड दैट आई हैव अनलोडेड माई सेल्फ एंड माई पेरेंट हैज अंडरस्टूड मी। नाउ यू गो टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे वो दोस्तों के साथ लड़ाई का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, एग्जाम्स आ रहे हैं, रिविजन्स नहीं हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो बॉडी इमेज इश्यूज हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। सो आवर कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द की। ओके, नाउ टेल मी कि आजकल तो मतलब जब हम लोग छोटे थे तब गैजेट्स इतने नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट आजकल के बच्चों को इतना एक्सपोजर है, दे ऑल हैव हैंडसेट्स इन देयर हैंड, दे हैव आईपैड्स, अब तो एजुकेशन भी ऑनलाइन चली गई है, इंटरनेट का इतना एक्सपोजर हो गया है। सो डू यू थिंक दिस मेक्स एन इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन देयर साइकोलॉजिकल ग्रोथ? So I've been saying this for quite a while now. You know, look at it this way. When your child is learning cycling, उसके लिए भी हम वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को कि आपको साइकिल सीखनी है तो कैसे सीखनी है, स्विमिंग करना है तो कैसे करना है। नाउ टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे। टेक्नोलॉजी यहाँ रहेगी, और टेक्नोलॉजी एक किस तरह से हम यूज करते हैं, बिकॉज ये तो टूल है, तो उस टूल को हम अपनी अच्छाई के लिए यूज कर रहे हैं या हम अपनी नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। नाउ गिविंग अ चाइल्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म, the internet availability, it's like कि आप without any skills on how to use it, it's like you've actually let the child be in the ocean not knowing how to swim। तो कुछ ड्राउन कर जाएंगे, कुछ थोड़ी देर बाद ऊपर फ्लोट कर जाएंगे, और कुछ जो है स्विम करना सीख जाएंगे। स्विम कौन करेंगे? जो स्किल्स सीख पाएंगे कि मैं मीडिया को कैसे फिल्टर करूं, मीडिया को कैसे समझूं। सो मीडिया लिटरेसी स्किल्स starting from the young age is very important. So I have a daughter, and at the age of 6 itself I started giving her media literacy skills। और वो क्या होती हैं? पहली चीज, बच्चों से ये बात करना, बातों बातों में टीचिंग मोमेंट्स। बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप उनसे पूछे कि थोड़ा सोच के देखते हैं कि ये जो है कार्टून है वो आप ही के लिए क्यों बना है, कौन सी एज ग्रुप के लिए बना है, आप ऐसा क्यों देखते हैं कभी कभार कि इसी सेम कार्टून का जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसकी चीजें जो हैं जब आप मार्केट में जाते हैं आइल में सबसे आगे पड़ी होती हैं।
It's like building that association about what is, marketing, what is digital, this thing, who's the target audience, कहाँ से information आ रही है, source of the information क्या है, ये कैसे आपको influence करता है, आपके lifestyle को कैसे influence करता है, क्यों आपको बार बार मन करता है कि आप इसी चीज को खरीदें, आप क्या इस चीज को बहुत ज्यादा बार देखते हैं, क्या आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स इस चीज की बहुत ज्यादा आ रही हैं. It's like, giving them that skill to be able to filter and read media much better. And it's something that we all need. I mean, हमको भी as parents जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. We also need to be media aware. We also need to be media educative. Because आजकल के टाइम में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो हम ही को नहीं समझ आता. तो Correct. पहले हम सीखें, फिर हम बच्चों को भी ये सेम चीज़ें सिखाएं. एंड इवन ऑनलाइन एटिकेट्स, so many things we observed and we heard during this point in time where even teachers were struggling and children were struggling कि किसी बच्चे को जो है ऑनलाइन क्लास से बाहर निकाल दिया, किसी ने म्यूट कर दिया किसी और को. It's like kind of teasing each other, which is playful for them. It's like how you would do it even in the physical space. पर हम फिजिकल स्पेस में क्या करते हैं, हम फिजिकल स्पेस में बच्चे को सिखाते हैं व्हाट इज काइंडनेस, व्हाट इज कंपैशन, व्हाट इज एम्पैथी, और ये पीयर टू पीयर रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में क्यों ज़रूरी है. सिमिलरली जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर भी तो हमें सोशल होने की ज़रूरत है. तो वहाँ पर भी काइंडनेस क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, क्या ये चीज़ को करके किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, फन और किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में. अब ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये मतलब दी स्ट्रगल्स आर ट्रू फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स. बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि बहुत सारे आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज देखते हैं, जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं, पीपल आर ब्रांचिंग आउट फॉर वर्क और फॉर व्हाटएवर रीजन एंड लिविंग सेपरेटली. अब इट्स जस्ट द पेरेंट्स and the child, and in so many families there's only one or two children. Okay, so two parents, two children. लेकिन इतने कम लोगों में भी वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है. What is the reason for that and how can we address that? I think somewhere we need to recognize that how our lifestyle has begun to change. हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, एंड ये बहुत अलग अलग लेवल्स पर है. मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑफ कोर्स, हर चीज़ के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर इन अ गुड फंक्शनिंग फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज समथिंग दैट स्टिल गिव्स यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट. मतलब आप एज पेरेंट्स काम कर रहे हैं एंड पेरेंट चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द ग्रैंड पेरेंट्स और इज इवन बीइंग सुपरवाइज्ड, इट्स सच अ बर्डन एंड ऑफ, एंड इवन द कॉन्वर्सेशन दैट अ चाइल्ड वुड हैव एक ग्रैंड पेरेंट के साथ, इतना अनकंडीशनल लव और सिक्योरिटी बच्चों को मिलती है उनकी कहानियां सुन के और उनके रिस्पॉन्सेज को देख के, वो अभी भी उतना ही हेल्दी है. जहां हमें लगता है कि हाँ अभी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, ऑफ कोर्स आवर फैमिली सिस्टम जो है वो और छोटा होता जा रहा है. सपोर्ट सिस्टम को हम फिर भी कैसे कंटिन्यूड रख सकते हैं, ये चीज को हमारी लाइफ में अभी भी लाना बहुत जरूरी है. सो कैसे वी कैन कंटिन्यू टू बिल्ड एंड कनेक्शन ऑन द एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, चाहे पेरेंट कम्युनिटी हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, वो सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. because that gives you that psychological support as well कि अभी अगर मैं नहीं हूँ तो I have this person to look after my child, and that also takes that a lot of that stressor. Otherwise क्या होता है कि हम in our own rigmarole of life, जिंदगी की भागदौड़ में इतने stressed होते हैं, unknowingly that stress also comes even in the time period that we are spending with our children. ये unintentional है. So दूसरी चीज कि जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज नॉट टू डू विद दैट, इट्स जस्ट द क्वालिटी. जब आप बच्चे के साथ वो 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ होमवर्क पे फोकस्ड हैं, या आप बच्चे की प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसी चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं. वो कॉन्वर्सेशंस जो है कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि कम हो रही हैं, तो इमोशनल डिस्टेंसिंग आएगी. we need to continue to maintain those conversations in our daily life as a family.
सो इवन हैव सम फैमिली रूल्स, मतलब एक साथ बैठ के आप ये देखें कि 1 घंटा दिस इज द डिजिटल डिटॉक्स टाइम एंड वी ऑल आर गोइंग टू जस्ट प्ले समथिंग और वी आर गोइंग टू हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट सर्टेन थिंग्स. Those conversations have gone less, and I think that those need to come in a lot more within families. एंड आई वांट टू नो कि अभी जैसे लॉकडाउन था और ऑफिसेज बंद थे, एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सो वर्क टाइम फैमिली टाइम जो था वो पूरा का पूरा Mix. मिक्स हो गया. और पीपल कुडंट, मतलब आई यूज्ड टू गेट मेल्स at 12 o'clock in the morning and I'm thinking ये कौन लोग हैं जो इतनी रात को काम कर रहे हैं, 9 बजे कौन ईमेल करता है. We try to keep our time separate but there are a lot of parents who struggled with it. तो ऐसे में now I know that children are looking at parents and they literally ape the behavior around them rather than what you say. तो आपके actions जो हैं वो बहुत important हो जाते हैं. लेकिन जब अपने मी टाइम और अपने वर्क टाइम को पेरेंट्स अलग नहीं कर पा रहे हैं तो उनका भी स्ट्रेस लेवल एक अनदर लेवल पर है. तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है दैट पेरेंट्स आर जस्ट ट्राइंग टू बी somebody they're not because Yeah. they want to behave a certain way in front of the children so that the children ape their behavior. Yeah. And I want to know how okay is it for parents to not do that, to let go and just make their struggles also real in front of their children. How okay is that? So एक तो जो the 24 hours of vigilance that parent and children have had on each other, I mean there has been good things also but there have also been a lot of side effects to that. I mean मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं at some point in time there have also been role reversals जहाँ पर हुआ है, and that's something that we have to just take it in our stride in a positive way, because I mean हम चाहे माने या ना माने but कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक ने हमें ये तो समझाया है कि फैमिली का एक साथ होना और चीज़ों को कैसे टॉलरेट करते हुए एक दूसरे के साथ जो है अच्छा समय बिताना जो कहीं ना कहीं कम हो गया था, उसको हम कैसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आए. So that has been the positive side of it. But yes, no doubt about the fact that parents have had a lot of multiple roles juggling in their lives. That has happened and it has taken a toll on a lot of parents, for that matters. Somewhere or the other somebody had to move to a lighter work or leave their work, and all these things have happened, and there have been I mean solutions की अगर हम वहाँ बात करें तो मल्टीपल लेवल पे solutions है. Organizations कैसे support कर सकती है, family support system कैसे आ सकता है to sort of work around these things. But at the same time what we've continued to also say is कि pandemic में अगर हमने survive किया है तो वो दो चीज़ों की वजह से ही किया है. एक तो support system और एक हम basic routine और बेसिक लेवल ऑफ सेल्फ केयर अपने लिए कैसे कर पाएं, इन दो चीज़ों से हम सर्वाइव कर पाएं. क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में वो पॉजेज ना लेकर आए जहां पर आप थोड़ी देर रुक के अपने आप के लिए वो मी टाइम एक्चुअली निकालें, सो दैट योर स्ट्रेस गेट्स डिसिपेटेड even in between work. If you're not stepping out of the balcony and just giving yourself that breathing, that I need to now go back but let me have this 5 minutes to myself to breathe and to be better. So वो कहीं ना कहीं जो है हमारे को इम्पैक्ट किया ही किया है, और अगर ये नहीं किया है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है. सो सेल्फ केयर इज समथिंग विच इज मस्ट एंड एन एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू प्रैक्टिस. बिकॉज अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, अगर आपका स्ट्रेस मीटर बढ़ता जाएगा तो आपके बच्चे पे वो आएगा ही आएगा. इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये सारे चीज़ें हमारी, और इम्पेशंस, ये सब चीज़ें हमारी जो है एक्शंस में आना शुरू हो जाता है जब हम अपना ध्यान नहीं रखते. तो जहाँ हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि एज पेरेंट्स हम अपना ख्याल भी रखें. सेल्फ केयर फॉर पेरेंट्स इज अ मस्ट. एब्सोल्युटली. बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी ये करना, बिकॉज लाइक यू वर आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस व्हेन अर्लियर यू वर सेइंग कि आप जो क्वालिटी टाइम की आप बात कर रहे हो बच्चों के साथ, कि आप सिर्फ होमवर्क पे फोकस कर रहे हो या उनकी प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हो, वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो वो भी देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो और वो भी देख रहे हो, एंड आई एम थिंकिंग आप अपना काम भी देख रहे हो, अपनी मीटिंग्स भी देख रहे हो, और उसमें आपको अपना मी टाइम भी 5 मिनट तो निकालना जरूरी है. आई मीन इट्स रियली रियली वेरी टफ, बट देन हु सेड पेरेंटिंग वाज इजी, राइट? Absolutely, it was. But I think the best thing about being a parent for me is कि कई सारी चीजें ऐसी, for example mental wellness के if you look at mental wellness, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप सीखते हो या relearn करते हो after you become a parent, because when you look at your kids and you see how simple their joys are, Absolutely. you sort of understand that
you know, okay, I'm बिल्कुल. having a little bit of network issues. No, you're absolutely right on that. In fact, I mean, I can completely empathize and understand about what you're saying, because given the fact that I've been working from home too, and I have this 8-year-old who's doing classes, and in between classes, मतलब अब आप अगर एक बार सेशन में हैं, तो in between session अगर help चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो Yeah, you exactly. would you need to obviously have some of those boundaries and some pre-conversations. But again, between sessions, like from moving one session to the other, there would be times where we would spend like 10 minutes to play with each other. That would take care of my stress and her need to engage with the parent, because वो friend and peer अभी नहीं था, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना है. तो वो कैसे कर सकते हैं? इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू बी बिट मोर क्रिएटिव. आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा जो एज अ पेरेंटिंग आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट स्किल्स. आई थिंक Yeah, वी जस्ट बिगिन टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी yeah. डिफरेंट वे. सो And sometimes you have to come up with things on the spur of the moment because you plan a lot, but everything goes out the window when your child has something else in his mind or depends on what his or her mood is today. And then you have to think on your feet. Like today, this conference, this webinar I'm doing sitting in my daughter's room because this is the only room in the house which has a table. So she's been very kind to give me her room to do this. And that's how things work. Okay, moving on to the next question. Doctor, National Education Policy 2020 के हिसाब से, they're focusing more on inclusive education. राइट. So how do you think that impacts the younger generation, especially the kids who are now entering elementary education? It is very important to have inclusive education, and we need to start early. So the fact that it's coming early in the elementary is a welcome step. You cannot be a sensitive society until unless you will be an inclusive one. Years are lost अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं पता कि आप जो है जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को समझते हैं और देखते हैं, उनकी लाइफ में किस तरह की चीज़ों से वो डील करते हैं, आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, एक सर्टेन लेवल पे आके ही समझेंगे, तो आप you've lost a number of years to understand it, and you've also lost a number of years to develop that language, which can actually be built beautifully from the very start. How to converse with a child with special needs, how to understand their emotions, how to also understand a different perspective to life, how to also change one's own self. So sensitivity and empathy जब तक हम early stage पे नहीं start करेंगे, वो inclusive education and inclusivity in the society नहीं आ पाएगी. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया step है. In fact, my child, she goes to a school in which inclusivity is started at an elementary already, and you can see the change. कि बच्चों में जो स्टार्टिंग से जो है टू अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड द क्वेश्चन दैट दे आस्क, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, मेक देम एज अ पार्ट ऑफ देयर पीयर ग्रुप. दोनों ही लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इवन फॉर द चाइल्ड विद स्पेशल Yeah, नीड्स, इवन फॉर, बिकॉज सोशल जो है ग्रूमिंग जो बच्चे की होती है in that inclusive environment, both for both of them, is such a good one. It's such a positive one that we actually need this. absolutely. Absolutely. I mean, it's good for both of them, and also it sort of normalizes the whole thing just the way it should be. I mean, there is हम लोगों को वो जो है मौका नहीं मिला, and I'm really glad that children, their generation, are getting that opportunity. Okay, now I'm going to ask you a very important question. Okay, you have to tell me, how can we handle temper tantrums in toddlers? कैसे समझाओ उनको जिनको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है, ये चाहिए मतलब अभी चाहिए. व्हाट डू यू डू? गोल्डन क्वेश्चन है. आई थिंक सबसे मुश्किल स्टेज हमें लगता है, बट मैं यही बोलती हूँ कि एक स्टेज के बाद, at every stage, as a parent, we need to just develop another level of another layer of patience within ourselves. So temper tantrum, this is a developmental language that the child has at that age, एंड उसको हम लैंग्वेज में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, वो बेसिकली होता है कि आप उस टेम्पर टैंट्रम को हैंडल कैसे करें. सो पहली चीज, जब टेम्पर टैंट्रम हो रहा है उस टाइम पे लॉजिक नहीं समझ आएगा बच्चे को. ये एक नेचुरल डेवलपमेंटल लैंग्वेज है जो बच्चा उस टाइम पे दिखा रहा है, टू assert oneself, to have those emotions, to express what the child is feeling at that point in time. Now if you will keep on giving in,
इट विल ओनली इंक्रीज। तो आप हर बार ना भी नहीं बोल सकते, आप हर बार लॉजिक से भी नहीं समझा सकते। आपको पहले उस टेम्पर टैंट्रम को और उस इमोशन को, बच्चे को काम होने की जरूरत है। सो पहली चीज फोकस करेंगे ऑन कामिंग द चाइल्ड। उसमें आप डिस्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। आप बहुत बार बोलते हैं टाइम आउट करो या कमरे से चले जाओ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट हेल्प। यू एक्चुअली हैव टू जस्ट काम द चाइल्ड। So, if it's a young child, 2-year-old, you obviously pick them on the, you pick them up, you try to distract them, you take them to the playground, you do all of these things. As the child goes and grows a bit older, you tell them, let's focus on how to feel a little calm. And in that, what is essentially important is for the parent to be regulated. बच्चे के टैंट्रम के साथ अगर आपका वॉइस का जो टोन और वो सारी चीजें अगर बढ़ती जाएंगी, तो इट्स लाइक एन कंप्लीटली डिफरेंट कम्युनिकेशन दैट यू मेकिंग। उससे बच्चा काम नहीं होगा। सो आपको काम होने की जरूरत है। आपका सेल्फ रेगुलेशन बच्चे के अंदर वो इमोशनल रेगुलेशन लेकर आएगा, जो बहुत जरूरी है। एक बार बच्चा जब शांत हो जाता है, देन यू टॉक टू देम दैट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या थी, इसको आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, both in terms of the gesture and in terms of words. What is a different way of how you can communicate it? But very important, never give in to a temper tantrum. Think twice before you say no to something, because that's where it starts. Say no to something and this is where the temper tantrum starts. So lot many times हमें ऐसे समझ आता है कि हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम इस नो को या टेंट्रम को ले सकें, तो हम गिव इन कर देते हैं. So you try to pre-think. Before saying the no, please think, are you in the situation कि ये टैंट्रम बन सकता है और आप उस टैंट्रम को हैंडल कर पाएंगे. बार बार अगर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पा रहे हैं जहां आपको टैंट्रम को गिव इन कर रहा है, तो वो वर्सन ही होगा. सो लर्न एंड चूज योर नोज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चूज योर नोज. No cannot be a reflex response to things, and that does happen in our parenting because we are also quite stressed and stretched with a lot of things. So पहली चीज जो ऑटोमेटिकली निकल जाती है वो है ना. उस ना को बदलें, रीथिंक करें थोड़ा सा. बच्चे भी उसी तरह से चीजों को लैंग्वेज में सीख पाएंगे. और आई थिंक ऐसा भी होता है, मोस्ट पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि ना बोल देते हैं, उसके बाद टेम्पर टैंट्रम होता है, फिर उसी ना को हाँ बोल देते हैं. सो देन यू आर जस्ट रीअश्योरिंग द चाइल्ड कि हाँ, व्हाट यू डिड is how you will achieve what you want to achieve. Absolutely. So yeah, between me and my husband also, we like really make it a point कि अगर ना बोल दिया है तो फिर उसको हाँ नहीं बोलना है. इसलिए we think twice कि ये चीज कर सकते हैं तो थोड़ा सोच के पहले ही हाँ बोल दो. So that if it's possible, do it. If it's not possible, then just stick to your no. बट ये बताइए कि ये तो छोटे बच्चे हो गए, टॉडलर्स हो गए, थोड़े से बड़े बच्चे जो थोड़ा बहुत लॉजिक समझते हैं, उनको अगर समझाना है कि ये चीज नहीं करनी है, I mean, you also want to discipline them, you want to make them understand कि हर चीज हाँ नहीं होगी. There are certain things which will not be done according to your wish. How do you deal with that without making them defiant or throwing their own kind of tantrum? Sit with them, talk to them about this in a way of pros and cons. जो आप चीज सोच रहे हो उसका प्रोज क्या है, उसका कॉन्स क्या है. Let's sit and think about that first. What are your concerns? Give them your side of the story. आपके concerns क्या हैं? Then listen to their side of the story. वो कैसे सोचते हैं कि उस चीज को हैंडल कर पाएंगे. Then you tell them, it's not necessary कि आपको immediately answer देना है. आप बोलें, I will rethink about this and then I'll come back to you. And then you make in your own head the decision whether you want to go ahead with this or you want to still withdraw from saying a yes to something like this. And that's absolutely okay. It's like आप किसी भी relationship में कैसे किसी चीज को communicate करते हैं, perspective build करते हुए, and आप disagree भी कर सकते हैं उसको, आप agree भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजें होती हैं. But that assertive communication in a collaborative way होना बहुत जरूरी है. इससे again perspective build होता है, and कोई भी चीज जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इमोशनल रिएक्शन उसमें नहीं बदलता, and which is healthy for any relationship, even for a parent-child relationship. And what can you say or what can you do to boost self-confidence, self-esteem in a child? आजकल मैं देखती हूँ, मतलब my daughter also, she's suddenly very particular about what others think of her. बाकी friends क्या बोलेंगे, मुझे judge करेंगे, ऐसे नहीं कर सकती, ये तो मैं तो कर ही नहीं सकती, ये चीज तो it's not acceptable in my part of the society. So how do you help them gain self-confidence and self-esteem?
सेल्फ एस्टीम इज पॉजिटिव इवैल्यूएशन ऑफ योर ओन सेल्फ. सो जरूरी है कि वंस इन अ वाइल आप एक चेकर करें कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम कैसा है. आप उनसे पूछें कि आप अपने बारे में कुछ मुझे अच्छी चीजें बताएं और अपने बारे में कुछ नेगेटिव चीजें बताएं. यू विल गेट एन एनालिसिस एंड आइडिया कि बच्चा जो है थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम से जो है कहीं ना कहीं जूझ रहा है, या सेल्फ एस्टीम अच्छी है बट कुछ it's just a peer conflict which is happening, a conflict of a self which is happening in the larger part of the larger scheme of things, because it's natural. आप इतनी सारी चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, specifically with the with the coming of the social media, जहाँ पर कंपैरिजन होता है, so many चीजें होती हैं, बॉडी इमेज इश्यूज जो है सर्टेन लेवल उस पे आने शुरू हो जाते हैं. दिस इज ऑल टू डू विद व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस. परफेक्शन क्या है, क्या इम्परफेक्ट है, क्या फीलिंग ऑफ शेम है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो अगेन ओवर हियर जब आप ये देखते हैं कि बच्चा इन चीजों से जूझ रहा है, सिट विद देम एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्या चीजें हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. सो इफ यू आर फीलिंग नेगेटिवली अबाउट योर ओन बॉडी, आप उस कंपैरिजन में जा रहे हैं, तो आप बैठ के उनसे पहले इस चीज को समझें. एंड इवन इन योर ओन डे टू डे कम्युनिकेशन, हम कैसे बच्चों से उनके लुक्स के बारे में बात करते हैं, किन चीजों को री-इन्फोर्स करते हैं, वो बहुत जरूरी है. तो इवन ऑन अ डे टू डे बेसिस जब आप स्पेसिफिक तरीके से बच्चे को री-इन्फोर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन इज दैट यू से ओ यू लुकिंग वेरी प्रिटी, और you say I like the way you team these things up, I think that was a good thought process, you're I think that was very creative. Now over here the child knows that there is a skill which has been reinforced, which the child has, so it's not just a generic statement. Similarly in other things, आपके पास बच्चा एक सुंदर सी पेंटिंग बना के ला रहा है, आप ये try and rather than saying oh it's a beautiful painting, wonderful, great, try to get into the specificity of it in your own communication. again आप ये बोले मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कलर स्कीम कैसे यूज करी, एंड आपने सोचा कैसे इस चीज के बारे में, मतलब हाउ डू यू थिंक अबाउट इट. ये सारी चीजों में जब आप एंगेज करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट, अ 2 minute कॉन्वर्सेशन, इट्स अ 2 minute कॉन्वर्सेशन, बट आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्यूरियोसिटी शो कर रहे हैं, और आप बच्चे का स्किल को रीइंफोर्स कर रहे हैं. सो जो स्किल्स बिल्डिंग है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड इट ऑल्सो टर्न्स इनटू अ पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन. And the other element that we have to look at, there are two parts of the self-esteem. एक तो है आपका skills, जो आप किसी भी एज पे आप बच्चों के अंदर इंस्टिल कर सकते हैं. दूसरा is value and the character. So even when the child is doing a kind behavior, rather than saying अरे बहुत अच्छी बात है आपने उसकी हेल्प करी, आप ये बोले I like the way you were kind to that person. हम काइंडनेस, एम्पथी, पेशेंस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को इनफ बच्चों के साथ रीइंफोर्स नहीं करते. और इस कम्युनिकेशन को आना एज अ वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली हम चाहते तो यही है कि वो वैल्यूज आए बच्चों में. तो वो वैल्यूज कैसे आएंगी, जब आप उन्हीं चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन में रीइंफोर्स करेंगे, एंड उससे बच्चों का एक सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ इवैल्यूएशन, इवन इन टर्म्स ऑफ माई ओन कैरेक्टर बिल्डिंग, वो बढ़ जाता है. So a strong character and a skills based this thing, both the things together gives a good self-confidence to the child. That was really, really well said. Made a lot of impact on me. Okay, doctor, I want to ask you कि अभी जैसे डिजिटल एरा है, ओके, सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया है. We all are keeping our fingers crossed कि schools जल्दी खुल जाएं. But तब तक, how can you help the child build interpersonal skills in such an online environment around? Which is a very pertinent question, I would say, because I have been seeing how children, in terms of their own relationships, are somewhere finding it very difficult to maintain those relationships because physical basis पे communication नहीं हो रहा. बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन और टेक्स्ट के थ्रू पे ही हो रहा है. सो यू वुड सी एक फ्रेंड ने एक को टैग किया, एक को नहीं किया, and that brings in that level of insecurity or the distance ke, am I as close a friend as I was earlier. So I think somewhere we need to bring in that element कि आप थोड़ा communication direct करें. वो डिस्टेंस से क्या होता है कि बच्चे इनिशिएट नहीं करते, वो सेल्फ इनिशिएशन टू पिक अप द फोन एंड कॉल अप माय फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है. सो इफ दैट इनिशिएशन इज गोइंग लेस एंड लेस, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस, सेल्फ डाउटिंग थॉट प्रोसेस, दैट मैं अभी भी उतना वैल्यूएबल दोस्त हूँ कि नहीं, अगर वो चलता जा रहा है,
तो आपको वो चीज़ encourage करने की ज़रूरत है. So encourage them to talk to their friends more. Now that friends are also meeting, let them meet. Let them have video calls. Let them have more direct calls. Encourage them to do that. Not just texting, because texting में आपको emotions नहीं ज़्यादा समझ आते. Emoticons Exactly. मतलब बहुत तरह के आ गए हैं, but then again there is a certain sense of tone that you feel in that. So and a lot many times कितनी बार ऐसा questions, put them these questions कि कितनी बार ऐसा होता है कि आप उदास feel कर रहे हैं but you still send a smiley. And then you feel कि nobody is able to understand me what I am going through. So it's a very inconsistent communication जो errors हमारे ही level पे हो रहे हैं. तो आप एक फोन क्यों नहीं उठाते? फोन उठाओ, अपने फ्रेंड से बात करो. उदास हो तो कोई बात नहीं, उनसे शेयर करो. वो उदास है तो आप सुनो. पर यही चीजें जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करती है, ना कि फॉलोअर्स, लाइक्स, ये सारी चीजें नहीं बिल्ड करेंगी. ये हमारे कनेक्शंस हैं. पर रिलेशनशिप जो है आउट ऑफ मीडिया ही बिल्ड होते हैं, जब आप वो एफर्ट डालते हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं. Okay. And also there are a lot of parents who put their children in different kind of classes. Now I'm coming to audience questions. This is the first question that I'm taking from the audience is कि पेरेंट्स अलग अलग क्लासेस में बच्चों को डालते हैं. ओके, डांस भी सीखना है, स्केटिंग भी सीखनी है, टाइक्वांडो भी सीखना है, सिंगिंग भी सीखनी है, कीबोर्ड भी सीखना है. तो बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है इस चीज का? सो हाउ डज वन डील विद दैट? इज दैट द राइट थिंग टू डू? एंड मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डांस जैसी चीज आजकल तो पेरेंट्स ऑनलाइन भी सिखाते हैं, बट डांस जैसी चीज या सिंगिंग जैसी चीज, हाउ डिफिकल्ट मस्ट इट बी फॉर द चाइल्ड टू पिक इट अप ऑनलाइन? ओवर स्केड्यूल नेवर हेल्प्स. सो नेवर ओवर स्केड्यूल योर चाइल्ड. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पर एट द सेम टाइम एक्सपोजर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो अगर आपका बच्चा कहता है मुझे इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा स्केटिंग करने में, आप भेज दो. फिर वो 6 महीने बाद कह रहा है कि मैंने स्केटिंग सीख ली, मुझे अब इसमें मजा नहीं आ रहा. मे बी द स्किल इज लर्न एंड दैट्स फाइन. 6 months कंसिस्टेंटली किया, स्किल लर्न हो गई. अच्छा, ना यू वांट टू पिक अप समथिंग एल्स, यू पिक अप समथिंग एल्स. एट द सेम टाइम 2-3 थिंग्स बच्चा पिकअप कर लेता है. उसके बाद बच्चे को ये रियलाइज होता है कि हाँ, इस चीज में मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली है. सो मैंने स्केटिंग भी करी, मैंने म्यूजिक भी ट्राई किया, मैंने आर्ट भी ट्राई किया, मैंने टेनिस भी ट्राई किया, मैंने ये स्पोर्ट ट्राई किया, मैंने ये सब चीजें ट्राई कर ली. इसमें से अब मैं 2 चीजें पिक करूंगी बिकॉज यही चीज तो मैं रिलेट कर पाती हूँ. एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. So opportunity, exposure is a must. Pushing the child to sustain all of this, no. It's like जैसे हम भी as parents, as adults, we're not good at everything. Yes. Right? We pick our strengths and we let go of the weaknesses and we choose what we enjoy. And I think that's beautiful, because अगर आप अपने बच्चे को इस एज में सिखा सकते हो कि वही करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, so then he's sorted for life, right? Okay, the next question is कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि बच्चे की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें हमें इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? When do you know this is the right time to step in? Well, I think support, as a support, we always play that role of a facilitator and a guide in our child's life. So एक चीज जो हमें बच्चों को अनकंडीशनली हमेशा याद दिलानी चाहिए वो ये है कि I am there. Whenever you need me, I am there. इवन इफ यू फील कि आप आज नहीं बात कर पा रहे, आप 2 दिन बात करना चाहते हो, जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में. हमें जैसी प्रॉब्लम होती है, हम ऐसा नहीं होता कि एकदम से कभी कभार पेरेंट के पास चल जाते हैं. हम कभी टाइम लेते हैं और फिर हम बात करते हैं उनके पास. दैट्स फाइन. एंड वो कहीं ना कहीं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल रिएक्शन कैसा रहता है इन मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस जब बच्चा हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आ रहा है. इसलिए मैंने इस चीज़ को इनिशियली जो है रीइंफोर्स किया था कि आपका लिसनिंग और आपका इनिशियल रिएक्शन बहुत ज़रूरी है फॉर अ चाइल्ड टू कीप कमिंग बैक टू यू. बिकॉज कंफर्ट तभी बिल्ड होगा जब बच्चे को ये पता है कि मेरा पेरेंट मुझे एब्जॉर्ब कर रहा है, मेरे इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग लाइक एन एम्प्टी वेसल. सो वो चीज़ एंड द फैक्ट दैट आई एम देयर एज अ सपोर्ट, एज अ फैसिलिटेटर, वो चीज़. हमारा फैसिलिटेशन में क्या होता है, आप गाइड करेंगे, आप बताएंगे ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं. आप बच्चे को रीथिंक कराएंगे कि क्या आपको लगता है ये चीज़ हेल्प करेगी, नहीं करेगी. And this is where you be a facilitator. But again, you don't impose, you facilitate. That's the difference. Okay. Now, another question also is coming from a viewer. It's a flip of the previous question that we asked. कि बच्चों को खुद कई बार लगता है कि जो मेरे peers कर रहे हैं मुझे वो सब करना है.
हम्म। कि ना बच्चे में इतनी सेंस नहीं है कि दैट ये चीज, if this is meant for me or not, whether I'm enjoying this or not, लेकिन मुझे करना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना है. So how हम्म। do you help them combat that kind of pressure? Let them do it, but ask them the right questions. आप ये करना चाहते हो, which is fine. आपको ये अच्छा भी लग रहा है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना. कभी भी लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा, कम एंड टॉक टू मी. बिकॉज बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, फिर भी एक पुश आपको लगता है बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर कि मुझे ये चीज करनी है. सो पीयर प्रेशर से हम सब, और हम सबको ये समझ आता है कि एट सर्टन स्टेज इन लाइफ आपको ये लगता है कि पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेबिलिटी होने के लिए मुझे ये चीजें करनी ही पड़ेंगी. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ द सर्वाइवल. मुझे ये लगता है कि कभी ना कभी आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं टू दैट पीयर ग्रुप, एंड दैट्स फाइन. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टेशन. वी कैन नॉट ऑलवेज लुक एट पीयर प्रेशर इन अ नेगेटिव वे एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मिंग योर चाइल्ड. सो उस चीज को आप उस तरह से बैलेंस करें. हैव दोज क्वेश्चंस, be watchful of your child, be observant how it is shaping your child, how it is impacting your child. जहां ऐसा लगता है कि कुछ negative impact आना शुरू हो गया है, at that point in time you step in and you ask them these questions. And अगर लगता है कि बच्चा नहीं चीजों को कंट्रोल कर पा रहा, सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं चलता जा रहा है, वहां पर जरूर स्टेप इन करने की जरूरत होती है. Because if the child is not able to control oneself and it is negatively impacting, very obviously, then you have to really take the control over there. Okay. The next question is that with a lot of working parents, the guilt of not spending time with their children is very, very immense. और उसकी वजह से they end up splurging a lot on their children and spoil them, fulfilling all their demands, making them stubborn. So how to deal with this guilt? Again, it's somewhere linked to what I said. The part of emotional parenting जो हम करते हैं, emotions तो Yeah. हमेशा होते होंगे parenting में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो. But this is where your awareness as a parent comes in. Am I doing this because I am feeling bad कि मैं इस चीज को बच्चे के साथ नहीं कर पाई? And now is that turning into overcompensation, which is unhealthy? You want to compensate, which is fine. You compensate in any relationship sometimes when you recognize कि आप उस time पे नहीं थे, you weren't there, and now you want to be there a bit more. That's fine. I'm okay with that. But is it coming in a healthy way in your relationship, in your behavior, in your reactions, in your actions rather? That is what one needs to understand. And this is where we as a parent need to be a bit more mindful. Don't do it because of the guilt. Guilt तो आएगा. मतलब as a parent आप, you cannot be guilt free. लेकिन उस गिल्ट में क्या मैं ओवरडू किसी चीज को कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ओवर बाइंग, इन टर्म्स ऑफ ओवर इम्पोजिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवर दिस थिंग? This is where you need to step back and draw a line and remind yourself, okay, what is a different way of I can compensate this? And sometimes ask your child as well. Mostly children, what they need is a playful time with a parent. If you ask children a lot many times, what they would say is कि आप मेरे साथ खेलो. And खेलो means not in the sense कि आप खेल रहे हो और आप साथ में फोन पे हो, पर आप actually खेलो. तो और ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये चीज बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, दे पॉइंट आउट. We don't realize it, and we as adults have also been making a lot of these errors. Matlab, as we grow old, we also become adulterated in a lot of ways, and children sometimes are able to really put this straight for us. And when they are showing us that mirror, we need to be conscious enough to take it in the right stride and bring about that change, rather than telling the child that no, you're wrong. Yeah, in fact, that makes me think of a very. I can give an example here, which happened between me and my 2-year-old son. He was generally hugging me and kissing me, and I asked him, "Arham, आप जब बड़े हो जाओगे, तब आप मम्मा को ऐसे ही huggy किसी दोगे ना?" He said, "नहीं, तब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा." I said, "क्यों?" "तब तो मुझे फोन पे रहना होगा, मैं आपको फोन करूंगा." And that's made me realize, that he sees me on the phone a lot because I'm in the social media business. I'm probably on the phone a little more than others. Mm. And I was like, no, this is not the kind of time I can be spending with him because Mm. he feels that this is the right thing to do as a grown up. You have to be on your phone.
No. Okay. So this is an interesting question कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की हो रही हैं और पेरेंट्स का भी काम बहुत बढ़ रहा है ऑनलाइन और अभी ऑफिसेज भी खुल रहे हैं. So how can parents help the children to be independent in studies? Online or offline, I think self-regulation in terms of studying is also equally important. सो आप स्टडीज को एक स्किल बेस्ड अगेन एक साइंटिफिक तरीके से बच्चों के साथ जो है उस चीज को सिखाएं उनको. पहली चीज, हमारा नॉर्मल अटेंशन स्पैन क्या होता है? 45 मिनट्स. 45 मिनट्स के बाद 5 से 10 मिनट आपको इन एनी केस ब्रेक लेना होता है. एंड दैट्स हाउ द इवन द क्लासेस आर शेड्यूल्ड. इफ यू एक्चुअली Yeah. लुक एट 40 मिनट्स की क्लासेस होती हैं या 45 मिनट्स की होती है, उसके बाद 5 से 10 मिनट का या 20 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है बच्चों को. दिस इज व्हाट नीड्स टू बी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड अदरवाइज, जब वो अपने आप से जो है काम कर रहे हैं. सो दोज मिनी ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आपके रिविजन्स इंपॉर्टेंट हैं. सो जो आपने आज पढ़ा है वो आप जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डे पे, सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ, 15th एंड 30th डे पे, इन चीजों पे जो है फॉरगेटफुलनेस होती है हमारी मेमोरी की. Oh, yes, this is scientifically has been experimented and tested. I It's a think I'm on the very third old day perpetually. सो इस तरह की चीजों को जब आप बच्चों की स्टडी स्किल्स में लेकर आएंगे, स्टडी स्किल्स क्या होता है, कैसे उसे इफेक्टिवली करना चाहिए, हाईलाइट को कैसे यूज करना है, निमोनिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप बच्चों को सिखाएंगे. सो बच्चे विल बी एबल टू फील अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट टू स्टडी इफेक्टिवली. बहुत बार ऐसा भी होता है कि देयर इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज डिफिकल्ट, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अ चाइल्ड कैन ऑलवेज फील लाइक एनी अदर चैलेंज. ओवर देयर अगेन यू आर देयर एज अ सपोर्ट, but ensure that your day-to-day engagement with the child is not merely about academics. It is there for a support, it is there for an evaluation. Wherever you feel you are struggling, you come and talk to me, but that should not be the only communication, because then a lot many times a child also loses that joy of learning, क्योंकि वो burden बनना शुरू हो जाता है. So the joy of learning is something that we need to preserve. किसी भी तरह से वो चीज़ को सीखें, चाहे वो ऑनलाइन इंटरनेट पे जाएं, चाहे वो किसी और तरीके से सीखे, कोई और एक्सपोजर से सीखे, जॉय ऑफ लर्निंग को हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है. एंड वेर एवर द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, यू जस्ट गिव देम स्टडी स्किल्स. A lot of these study skills are available even on our Fortis website, and parents can always have a look at it. एग्जाम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, बैलेंस कैसे करना है बच्चों के एग्जाम टाइम और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं. सो दैट एग्जाम्स आर नॉट अ मॉन्स्टर, इट्स जस्ट अ लाइफ स्किल like any other exam, and that's how you have to deal with it. So now you're talking about exams. I want to ask you कि बहुत से बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं इस चीज का कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, and parents also I see so many times they sort of pressurize the child कि इतना तो आना ही चाहिए, और colleges में और higher education में भी cut offs important होती हैं, तो इतना pressure जो है बच्चों के ऊपर, sometimes it leads to depression in kids. How can one deal with that as a parent? The results are never in our hands. That is a communication that needs to go. What is in our hands, क्या हमारे कंट्रोल में है, वो है आपका एफर्ट. एज लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंट एफर्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपने अपनी रिविजन्स अच्छे से करी, आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी, बाकी चीज इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो यू गिव योर बेस्ट, and I'm glad that you made good efforts. That's what matters to me the most. This is the communication we need to give to a child. And in that process, कहीं पर भी आपको realize होता है बच्चा struggle कर रहा है, try to look beyond what you are seeing. It is not about lack of interest. It is not about the fact that the child is not motivated enough because child doesn't want to do. But it could be that child is struggling somewhere where child is unable to do. So there's a difference between the two. Child is unable to do and child doesn't want to do. And we have to make the child able to do that thing. तभी कर सकते हैं जब हम ये recognize कर सकें कि problem कहाँ आ रही है. तो जब भी आप ये चीज़ देखते हैं, बच्चे से पूछें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और वहाँ पर अपना बेस्ट सपोर्ट हेल्प जो आप हमेशा देते आए उसको दें. Okay, so Dr. Maimansha, now the kind of world that we are living in today, and everybody has pressures. Okay, we've already established that parents भी struggle कर रहे हैं as adults in their work life, and as parents in nuclear families.
और बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज किसने सोचा था कि लॉकडाउन हो जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा, दैट फिजिकल टच एंड द इंटरेक्शन दैट अ चाइल्ड नीड्स एट दिस एज इज सिंपली मिसिंग. तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो एज अ पेरेंट हम लोग अपने बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, सो दैट वी आर अश्योर्ड कि आगे चलकर बड़े होकर ये चीजें उनको आ जाएंगी, they'll be good. So from the very start, all of these skills, life skills, are very important. Communication skills, emotional regulation skills, assertiveness skills, empathy, perspective building, conflict resolution, ये हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये कुछ बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल्स हैं जो हम कहते हैं कि both it needs to come in as a part of our own education system as well, and needs to be really integrated, not just in the form of just one time just spoken about it and that's about it, but it needs to be really integrated very well. And even आपके parenting में ये integration of these skills आना ज़रूरी है. And a lot of these things happen through your communication and conversations. And so I always reinforce the fact that a parent child conversation teaches you a lot of things. आपको perspective building सिखाता है, आपको empathy सिखाता है, आपको problem solving सिखाता है, आपको emotional regulation भी सिखाता है, provided we are asking the right questions, we are doing it in the right way, and we are also using these skills in our own communication. So that was the last question from the audience. And Dr. Memansa, I've had a wonderful session. I hope our audience enjoyed it too. Because literally इतनी सारी चीजें आपने जो बोली कहीं ना कहीं पता होती हैं, लेकिन it's very very difficult to remember these things at the time when you need to remember them. जब वो situation हो रही होती है तब ये चीजें अगर आपके दिमाग में freshly enforced हैं तो it really helps. So thank you so much for your time, and thank you to our audience for watching this session. And stay tuned to more sessions from Policy Bazaar. And this is both of us signing out. Love and peace from us to you. Thank you.